Good morning, students. Myself Anurag Singh, and today I am here in front of you with the new topic integration, in which we will study today integration of the type. I taught you कि we will use integration as a type. Then the next type of integration is what? Integral of the type 1 upon quadratic. 1 upon quadratic dx. We are going to solve integration of 1 upon quadratic dx. बेटा 1 upon quadratic में क्या है? मेन इज व्हाट? क्वाड्रेटिक. इसमें 3 टाइप्स के सम्स मिलेंगे, 1, 2 एंड 3. फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सेकेंड c plus bx minus ax square, and third x square plus a square. Yeah, ये plus minus, there is no matter of plus and minus. There are type of integration quadratic. First quadratic, that is the standard quadratic, ax square plus bx plus c. That means first terms, middle term and constant term. First term, middle term and constant term. All the 3 terms are given, in which first term is positive. Coefficient of first term is positive. In second case, all the 3 terms, first term, middle term and constant term. Clear? First, middle and constant. All the 3 terms are present, but first term's coefficient is negative. Here first term's coefficient is what? Positive. And the third type of the question is what? First term and constant term, in which middle term absent. Middle term क्या रहेगा बेटा? Absent रहेगा. 3 conditions are given. Quadratic can be differentiated by 3 types. One is second and third, in which first term, that is the standard quadratic equation. Standard quadratic equation, in which there are 3 terms. First is ax square, second middle term, that is known as middle term bx, and last term is what? Constant c. In second type of questions, all the 3 terms are present. All the 3 terms are present, but that is what? First term. First term किसको बोलते हैं बेटा? Where the coefficient x is in square, degree of that term is power 2. That means it is negative. Here negative term is what? First term, second term and constant term. In third case, x square and a square. What is in this term? X square and a square. X square is positive and a square is what? Anything. मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ, there is no matter of plus and minus, but we will discuss about ax square plus bx plus c and that dot and so on. Right now, बेटा तीनों कंडीशन समझ में आ गई. What is the first condition? Standard quadratic equation. What is the second condition? First term is negative and all the 3 terms are present. And what is in third condition? Middle term is absent. Now we are going to explain few questions of this 1 upon quadratic type equation and their solutions. पहला स्टेप में बेटा लेने जा रहा हूं बेटा, where middle term is absent. Integral of the type 1 upon quadratic. Integral of the type 1 upon quadratic dx, where middle term is absent. Clear? क्वेश्चन लिया बेटा मैंने. क्या सपोज कर लो एक क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 9 minus 25x square dx. Yes or no? Find the integration of 9 minus 25x square dx. First condition, is it quadratic or not? Yes, it is quadratic. Why? Because the degree of x is 2, therefore it is quadratic.
सेकंड कंडीशन, मिडल टर्म is present or absent. Middle term is present or absent. If middle term is present or absent, then we will here find x middle term is absent. Middle term is absent. If middle term is absent, then बेटा ध्यान दो, मिडल टर्म एब्सेंट है, क्या करेंगे अब हम? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी स्क्वायर में. दैट मीन्स चेंज इन स्क्वायर both separately. That means that can be written as like here 9 can be written as 3 square minus 25x square can be written as 5x the whole square and dx. दोनों को सेपरेट मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? सेपरेट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ दिस इज, अब मैंने आपको 6 फार्मूले बताए थे, उस फार्मूले में से ये कौन सा फार्मूला इसमें मैच कर रहा है? फिर से लिख दूं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. कौन सा फार्मूला? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. यही फार्मूला मैच कर रहा है बेटा, देख लो एक बार. अगर इस फार्मूले को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. एक्स मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दैट इज 5x अपॉन ए. ए मीन्स व्हाट? 3 एंड देन प्लस सी एंड होल डिवाइडेड बाई. बेटा इतना सब होने के बाद, ये तक तो आंसर हो गया. इसके बाद what is the coefficient of x? Coefficient of x is what? 5. then divide by 5. इंटीग्रेशन के हर सम में याद रखना कि x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड किया जाता है. therefore I can be written as, ये 5 को ऐसे लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन 5 इंटू साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस सी. समझ में आया? एनी डाउट? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा. मैं कौन से मेथड पे जा रहा हूं? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसमें कौन सा टर्म रहेगा? मिडल टर्म एब्सेंट होगा. क्या बोला मैंने? वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन विच मिडल टर्म इज एब्सेंट. यस और नो? लुक हियर, जब भी सम मिडल टर्म एब्सेंट होगा तो दोनों जो नंबर्स गिवन हैं, ऑल द गिवन नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स. 9 can be written as 3 square and 25x square can be written as 5x square. Then any one of the 6 formula, क्या बोला मैंने? फिर से सुन लो. any one of the 6 formula, जो मैंने 6 फार्मूले लिखाए थे लास्ट वीडियो में, उनमें से कोई भी एक फार्मूला आपका क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा. दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. मैच किया, उसका आंसर क्या था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी मैच करा दिया बेटा, वैल्यूज पुट अप कर दिया. ये है ए एंड दैट इज व्हाट? एक्स. then sin inverse x upon a and divide by the coefficient of x, that is 5 plus c, and that's your final answer. Is that clear? If you have any doubt you can ask me, right? Next एक सम और लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 9, सम नंबर 9 of exercise number 7.4. exercise number 7.4, question number 9. What is given in question number 9? Integral of sec square x divided by under root tan square x plus 4. Tan square x plus 4 dx. Look here beta. Is the given sum is quadratic or not? Is the given sum is quadratic or not? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि सारी तारीफी जो है ना बेटा इंटीग्रेशन में, वो किसकी है? क्वेश्चन को पहचानने की. एक बार क्वेश्चन पहचान में आ गया ना तो फिर बल्ले बल्ले जिसको भंगड़ा करते हुए सम सॉल्व कर लोगे. और अगर क्वेश्चन नहीं पहचान में आया तो यू कैन नॉट सॉल्व एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस. तो मेन फोकस आपका क्या होगा? क्वेश्चन को पहचानने का. देखो डिनोमिनेटर को देख लो, tan स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स ये स्क्वायर में है.
तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, पुट tan x इज व्हाट t। क्या पुट किया बेटा मैंने, tan x इज इक्वल टू t। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को ट्रांसफर कर ले बेटा, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x। Therefore, I can be written as integral of sec square x divided by under root tan square x, na, that can be written as t, then that tan square x can be written as t square plus 4 into dx is replaced by dt upon sec square x, where sec square x and sec square x are cancelled with each other. Therefore, I is equal to integral of under root t square plus 4 dt. Look here, quadratic or not? बस फर्क क्या है पता है, x की जगह पे t लिखा है, तो डिग्री ऑफ t is 2, therefore it is quadratic. सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये पता चल गई कि yes it is इक्वेशन ऑफ quadratic. And second condition बेटा, middle term is absent. Here middle term is absent. First term है और क्या है, constant term. तो रूल अप्लाई कर देंगे, कौन सा, मिडल टर्म एब्सेंट वाला। क्या रूल था बेटा, रूल नंबर 1, दोनों को सेपरेट सेपरेट किस में कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। Now use the formula x square plus a square. कौन सा फॉर्मूला बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैच करा दो बेटा उस फार्मूले से। अगर मैच करेंगे तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, सॉरी इंटीग्रल तो करना है तो इंटीग्रल नहीं लगेगा, रिजल्ट आएगा क्या बेटा, I इज इक्वल टू लॉग मॉड x, x इज रिप्लेस्ड बाय t, देन लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड देन प्लस c। देयरफॉर I इज इक्वल टू लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट t square plus 4 and then plus c. Now resubstitute value of t. Therefore I is equal to log mod t is what, tan x, log mod tan x plus under root tan square x plus 4 and then plus c. That's your final answer. Is that clear? बेटा कोई भी सम होगा याद रख लो, फिर से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन विच मिडल टर्म इज एब्सेंट ना। कंडीशन समझ में आ गई बेटा आपको ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी का एक्सप्लेन लेते हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वेयर फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, वेयर फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। फिर से सुन लो बेटा, क्या बोला मैंने, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वेयर फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वेयर फर्स्ट term is positive. Clear? Integral of the type 1 upon quadratic where first term is positive. First term is positive का मतलब आपको समझ में आता ही होगा। एक क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 upon 9x square plus 6x plus 1 upon 9x square plus 6x plus 5. Integral of 1 upon 9x square plus 6x plus 5 dx। बेटा बहुत केयरफुली ध्यान देना, बड़ी काफी इंपॉर्टेंट सम है, ये आपको समझ में आना ही चाहिए।
ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझको बार बार फोन करो या बार बार वीडियो को रिवाइज करो, मैं हर एक पॉइंट को कवर कर दूंगा। आई होप कि वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन पहचानने की क्वालिटी क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में क्या है, पॉजिटिव। तो रूल नंबर 1, सब स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। रूल नंबर 1 ये है बेटा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नो एनी अदर नंबर। क्या बोला मैंने? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1, नो एनी अदर नंबर, बट हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9, देयरफॉर रिमूव इट। 9 को रिमूव करेंगे बेटा तो 1/9 बाहर हो जाएगा और अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9 dx। 9 यहां से कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में है बेटा, इसलिए 1/9 लिखा। अब 9 यहां से कॉमन लिया तो यहां पे तो हो गया, यहां पे 9 था नहीं इसलिए 6/9, यहां भी 9 अवेलेबल नहीं था इसलिए 5/9। क्लियर? इट कैन बी रिटन एज like 1/9 integral of 1/x square plus 3 2 जा 3 3 जा, that means 2/3x plus there is no cancellation, that is 5/9 dx। याद हुआ? रूल नंबर 1 completed। रूल नंबर 1 completed। What is the rule number 1? Make the coefficient of x square 1। फिर से बोलो, make the coefficient of x square 1, therefore taking common 9 and so on, so we get here now। अब याद हो आपको ना, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, 10th स्टैंडर्ड में, इन विच थर्ड टर्म, इसका रफ में थर्ड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म, उसका फार्मूला होता है बेटा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ध्यान दो, वो तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 2/3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 2/3, तो देन 2/3 द होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, रिजल्ट आएगा 1/9। थर्ड टर्म क्या कितना आया? 1/9। देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये वाला 1/9 लिखा मैंने पहले, ध्यान रखो, इस वाले को वैल्यू नहीं लिखा मैंने, यहां पे जो था वो एज इट इज लिखा, 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x। यस और नो? पहले फर्स्ट टर्म लिखा, फिर मिडल टर्म लिखा, देन दिस वैल्यू दैट इज व्हाट, 1/9 प्लस थर्ड टर्म 5/9 माइनस 1/9 dx। बेटा थर्ड टर्म को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर से देख लो, जो थर्ड टर्म मैंने फाइंड आउट किया वो क्या करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। ऐड किसके साथ किया? मिडल के साथ, और सब्सट्रैक्ट किसके साथ किया? कांस्टेंट टर्म के साथ। क्लियर? दैट मीन्स ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ऐड and subtract third term with addition with middle term and subtraction with constant term। clear? now ये तीनों का एक ग्रुप बनेगा और ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा, तो that can be written as I is equal to 1/9 integral of 1/, look here, देखो ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे लिखने का। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखोगे, आप क्या लिखोगे? एक्स। यहां पे कौन सा सिंबल है, प्लस या माइनस? प्लस है, देन टेक प्लस, एंड हियर 1/9 है तो उसका रूट क्या होता है बेटा? 1/3, और पूरे को ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर। फिर से समझ लो, यहां से एक्स कैप्चर किया, यहां से 1/9 का रूट दैट इज 1/3 कैप्चर किया, और ये प्लेस से क्या कैप्चर किया मैंने? सिंबल कैप्चर किया, राइट? एंड हियर 5/9 minus 1/9 that is equal to 4/9 dx। yes or no? therefore the question can be written as I is equal to 1/9 integral of 1/,
अब देखो बेटा, ये तो होल स्क्वायर में हो गया, इसको भी होल स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो दैट इज x प्लस 1/3 the whole square plus 2/3 the whole square dx and use the formula. all the 6 फार्मूला में से कोई एक फार्मूला इसमें भी मैच करेगा. कौन सा? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx that is equal to 1/a tan inverse x upon a plus c. याद करो फार्मूला. 1/, this is the term of x, then there is x square, that is constant, then it is a square, then formula is 1/x square plus a square dx. Therefore I can be written as 1/9 into, अब यहां पे फार्मूला 1/a, then 1/2/3, a की वैल्यू कितना बेटा? 2/3 into tan इनवर्स x अपॉन ए, x मीन्स ये पूरा x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस c, 3 3 जा 9, therefore I is equal to 1/3 into 2 6 into tan इनवर्स. अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, 3x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 एंड देन प्लस c, 3 और 3 कैंसिल. ओवरऑल इज व्हाट? 1/6 into tan inverse 3x plus 1/2 and then plus c. Any doubt? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन का टाइप पहचाना, 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मिला मुझे, राइट. मुझे ये पता चल गया कि द गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 1/quadratic. आफ्टर गेटिंग द क्वाड्रेटिक, रूल नंबर 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बनाओ? मेक इट 1. जब 1 बनाएंगे बेटा तो 1/9 बाहर हो गया और अंदर के जितने भी टर्म्स थे वो सब में 9 डिवाइड हो गया. जहां कैंसिलेशन पॉसिबल था वो कैंसिल किया, जहां कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है वो कैंसिल नहीं किया, अच्छे से साफ साफ उसको लिख दिया. थर्ड बेटा, इस स्टेप के बाद हमने क्या किया? थर्ड टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट. थर्ड टर्म निकालने का फार्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. अप्लाई किया 1/2 इंटू ये कोएफिशिएंट ऑफ x इज दैट इज 2/3 द होल स्क्वायर. दैट इज आंसर कितना है बेटा? 1/9. 1/9 को क्या करना है? ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है. फिर से सुन लो, 1/9 को क्या करना है? ऐड एंड सब्सट्रैक्ट. मिडल टर्म के साथ ऐड करेंगे और कांस्टेंट के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे और दो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. फर्स्ट ग्रुप में ये तीनों टर्म होगा, एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म और थर्ड टर्म. सेकंड ग्रुप में कांस्टेंट टर्म और थर्ड टर्म होगा बेटे. ये तीनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 1/3 द होल स्क्वायर, और इन दोनों का सोल्यूशन निकाला बेटा 4/9. रूल के हिसाब से ये होल स्क्वायर में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. देन 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 द होल स्क्वायर. देन यूज द फार्मूला ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. जो 6 फार्मूले बताए ना मैंने, उसमें से ही कोई ना कोई एक फार्मूला यहाँ पे क्या होता है? मैच करता है. तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, देयरफॉर दैट इज व्हाट आंसर. तो अप्लाई कर दिया बेटा 1/9 इंटू 1/a, a मीन्स 2/3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2/3. सिंप्लीफाई किया बेटा हमने इसको. सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट कितना है? 1/6 एंड 3x प्लस 1/2 and plus c. Is that clear? Any doubt? ये इतना था बेटा 1/quadratic का फंक्शन, राइट. अभी हम लोग कुछ और सम्स लेते हैं. सपोज कर लो हमने एक सम ले लिया, इंटीग्रल ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, कंफ्यूज मत होना. अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने जा रहा हूँ, सिंप्लीफाई करूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे. वेयर मिडल टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव. इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट सम लेंगे बेटा वेयर द फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट कंप्लीट तो कर ले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx. क्वाड्रेटिक है बेटा, रूट लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रूल रूल होता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक पे हो या विदाउट क्वाड्रेटिक पे हो. ओके,
तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं बेटा, तो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक। तो रूल नंबर 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो ऑलरेडी 1 है, तो देयर इज नो चांस ऑफ टेकिंग कॉमन। तो इसको हम डायरेक्ट अब कहां पे आ जाएंगे बेटा, थर्ड टर्म। इसका थर्ड टर्म होगा हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2 द होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा 1 स्क्वायर दैट इज 1, मींस इसका थर्ड टर्म आ रहा है बेटा कितना, 1। तो रूल के हिसाब से इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, रूल क्या था बेटा, थर्ड टर्म को ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। थर्ड टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ऐड विद मिडल टर्म and subtract with constant term, add with middle term and subtract with constant term, therefore that can be written as x square plus 2x plus 1। देखो ऐड कर दिया मिडल टर्म के साथ, अब कांस्टेंट टर्म लिखेंगे बेटा 2 एंड सब्सट्रैक्ट एंड देन dx। देखो फर्स्ट टर्म मिडल टर्म ऐड किया, कांस्टेंट टर्म के साथ सब्सट्रैक्ट किया, therefore अब ग्रुपिंग बनेगी बेटा, ये these 3 makes one group and these 2 makes one group, then that can be written as 1 upon under root। देखो इस ग्रुप को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना आपको, यही बोला था या कुछ और बोला था? होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का रूल क्या था बेटा, यहां से x लिया मैंने, यहां से क्या लेते हैं सिंबल, और यहां से लिया मैंने 1 और उसका होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट 2 minus 1 that is what 1 and dx, that can be written as 1 upon under root x plus 1 the whole square plus this is 1 ना, then 1 square dx। चलिए इसका रूट कन्वर्ट करना था तो 1 का तो रूट 1 ही आएगा, इसलिए 1 स्क्वायर लिख दिया, राइट। नाउ यूज द फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a square dx which is equal to log mod x plus under root x square plus a square plus c, right। therefore I is equal to log mod x, x is what, x plus 1 plus under root x square, that means what, x plus 1 the whole square plus a square means 1 square and then plus c, then simplify it, log mod x plus 1 plus under root, इसको simplify करो बेटा, x plus 1 the whole square is what, x square plus 2x plus 1 and then 1 square is 1, where are c, therefore I is equal to log mod x plus 1 plus under root x square plus 2x plus 2 plus c। एक शॉर्टकट बताऊं बेटा, 99% क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे वही आता है जो हमारा क्वेश्चन होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में जहां पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वहां 99% क्वेश्चंस में वो अंदर का नंबर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों हमेशा क्या आता है, सेम। बस चेंजेस कहां होते हैं, व्हेन यहाँ पे क्या हो, कोएफिशिएंट 1 ना हो के क्या हो, कुछ अदर नंबर हो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x प्लस एंड सो ऑन, राइट ना। तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है इन केस ऑफ फाइंडिंग योर इंटीग्रेशन बाय 1 upon quadratic method, right। now we are going to take next question which is in the form of 1 upon quadratic but first term is negative। क्या लेने जा रहे हैं बेटा, 1 upon quadratic but first term is negative। this is the third type of integration of 1 upon quadratic। फिर से बोल रहा हूं बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1 upon quadratic by first term negative, ओके। चलो
काफी आसान है बेटे, टफ नहीं है। मैं आपको ये आज सम्स करवा रहा हूँ, वीडियो दूंगा और इस वीडियो के साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा और आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताएंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dx when first term is negative। क्लियर। क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूं बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर 7 minus 6x minus x square dx। Look here, x square that is the first term ना, वो आगे हो या पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। He is the head of the family। अपनी घर में फैमिली में अपने पापा बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं ना, तो घर पे हो या ना हो रहेंगे तो वही ना, उस फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, राइट। वैसे बेटा एक्स स्क्वायर चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, रहेगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म ही रहेगा। एंड इन द गिवन क्वेश्चन फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव। इफ द फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव देन हाउ वी यूज कैलकुलेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। लुक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1 वो कभी बदलता नहीं है। रूल नंबर 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। रूल नंबर 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। तो इट इज ऑलरेडी 1, मतलब रूल नंबर 1 की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, फाइंड थर्ड टर्म दैट इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर दैट इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 6 द होल स्क्वायर 3 दैट इज 9। मैंने इसके पहले वाले सब में क्या बोला था बेटा, मैंने फिर से बोल दो, क्या बोला था? थर्ड टर्म के साथ ऐड करेंगे और कांस्टेंट के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस बार हम उल्टा करने जा रहे हैं, देख लो ध्यान से। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड टर्म, नेक्स्ट ये थर्ड -9 और तुरंत लिखेंगे बेटा +9। नेक्स्ट -6x एंड -x स्क्वायर dx। यस और नो, बोलो। या फिर आप ये भी कर सकते हो बेटा कि इसको प्लस करो और यहां पे क्या करो, माइनस करो, राइट। थर्ड टर्म के साथ ऐड करो, तुरंत सब्सट्रैक्ट करो, फिर मिडिल टर्म और देन फर्स्ट टर्म। क्लियर? ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कैसे करना है आपको? क्वेश्चन देखना है, डिसाइड करना है कि यस हियर फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, देन सेकेंड स्टेप में आओगे आप, दैट इज रूल नंबर 1। व्हाट इज द रूल नंबर 1? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। दिस इज ऑलरेडी 1, ओमिट इट। अब आओगे रूल नंबर 2, दैट इज फाइंड थर्ड कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है बेटा आपका? 1 अपॉन, सॉरी कितना आया? 9। अब 9 को कांस्टेंट के साथ ऐड करोगे, फिर से पोजीशन देख लो, पोजीशन मत बदलना अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। 7, फिर तुरंत क्या करोगे? ऐड करोगे, फिर तुरंत सब्सट्रैक्ट करोगे, -6x -x स्क्वायर। दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट 9 और 7, ये दोनों एक ग्रुप बनाएंगे और ये तीनों एक ग्रुप बनाएंगे। ध्यान रखो बेटा, 9 और 7 16। यहां पे कुछ भी हो माइनस आप लिखोगे, क्या लिखोगे? माइनस एंड देन ब्रैकेट। पहले क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे, फिर आगे क्या लगाओगे? ब्रैकेट लगाओगे। और उसके बाद देखो ये टर्म क्या है, बैक साइड से लिखना शुरू करोगे, बैक फुट पे आ जाओगे आप अपने। बैक फुट पे क्या है बेटा? x स्क्वायर 6x एंड देन 9
dx। क्लियर? फिर से बोल बताऊं, पहले ये दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, फिर यहाँ पे चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, बट यू हैव टू टेक माइनस, और माइनस लेने के बाद ब्रैकेट लगाओगे और बैक साइड से लिखना शुरू करोगे, एक्स स्क्वायर 6x and then 9, that can be written as integral of 1 upon under root 16 can be written as 4 square minus, and that can be written as x plus 3 the whole square dx। अब ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा बेटा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। उसका रिजल्ट होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। क्या फार्मूला बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। नाउ इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x मीन्स x प्लस 3 अपॉन व्हाट बेटा? 4 एंड देन c। हो गया आपका फाइनल आंसर, i इज इक्वल टू। ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, जिसपे जो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए, राइट? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू सॉल्व इट, and we will meet again in the next video next day। Bye bye, thank you।